not a game, it's a rich thing. انسان چاہے 1000 سال بھی جی لے لیکن وہ مرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ چند اور سال اس دنیا میں گزار لے، مگر صفدر حسین کے ساتھ معاملہ بالکل مختلف تھا. وہ زندگی کی 40 بہاریں دیکھ چکا تھا. یہ انسان کی پختہ عمر ہوتی ہے، عقل اور شعور درجہ بلوغ کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، سمجھ ٹھیک طور پر کام کرنے لگتی ہے، اچھے برے کی تمیز واضح ہو جاتی ہے. صفدر حسین ان تمام اوصاف کا حامل تھا، لیکن آج اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس سے جینے کی امنگ چھین لی تھی. وہ افسردہ دماغ اور بوجھل دل کے ساتھ گھر آیا تو اس کی بیوی زرینہ نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے صفدر، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ میں بہت تھک چکا ہوں، اس نے مردہ دلی سے جواب دیا. سر میں شدید درد ہو رہا ہے، تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں. زرینہ نے معتدل انداز میں کہا، تم سر درد کی گولی کھا لینا، تمہاری طبیعت سنبھل جائے گی. لمحاتی توقف کر کے اس نے ٹٹولنے والی نظر سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، میں تو سمجھ رہی تھی کہ آج تم بڑے جوش سے بھرے ہوئے گھر میں آؤ گے اور مجھے کوئی خوشخبری بھی سناؤ گے. کیسا جوش؟ صفدر نے سوالیہ نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا. تم کس خوشخبری کی بات کر رہی ہو؟ ارے اتنی جلدی بول بھی گئے؟ وہ حیرت سے اسے تکتے ہوئے بولی، کل تم نے ڈیوٹی کے دوران میں جو کارنامہ انجام دیا تھا اس پر تمہیں کوئی ترقی، کوئی انعام تو ملنا چاہیے، مگر تم تو منہ لٹکائے گھر میں داخل ہو رہے ہو. انعام ملا ہے نا؟ وزیر خند لہجے میں جواباً بولا، پورے 30,000 روپے. بات کیسے تام پر صفدر نے اپنی جیب میں سے 30,000 کے کرارے نوٹ نکال کر زرینہ کی جانب بڑھا دیے. ارے واہ! وہ اس کے ہاتھ سے 30,000 کے کرنسی نوٹ لیتے ہوئے پرمسرت انداز میں بولی، یہ رقم تو تمہاری تنخواہ کے برابر ہے. ابھی 3 دن پہلے ہی تمہیں تنخواہ ملی ہے، گویا اس ماہ تمہاری ڈبل آمدنی ہوئی ہے. میں کل شاپنگ کے لیے جاؤں گی. میں تمہیں شاپنگ سے نہیں روکوں گا، وہ سپاٹ آواز میں بولا، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے. کیسی شرط؟ زرینہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. صفدر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ان پیسوں سے تم صرف گروسری اور کھانے کے دیگر ضروری سامان ہی خریدو گی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ زرینہ کی آنکھوں میں الجھن تیز ہو گئی. میں چاہتا ہوں ہمارے گھر میں کم از کم 3 ماہ سے زیادہ راشن کا اسٹاک ہونا چاہیے، ظفر نے گہری سنجیدگی سے کہا. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ زرینہ نے بیوی والے مخصوص انداز میں استفسار کیا. کیا بازار میں اشیاء ہردونوش کا کال پڑنے والا ہے؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لو، صفدر نے گول مول جواب دیا. ہو سکتا ہے ہم خریدنے کے قابل ہی نہ رہیں. چیزوں کی قیمت تو ہر روز بڑھ رہی ہے. وہ اپنے ہی دن میں بولتی چلی گئی. محدود آمدنی والوں کا جینا محال ہو گیا ہے، لیکن تمہاری 3 ماہ کے راشن کے اسٹاک والی بات تو میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی. میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہمارے پاس 30,000 معمول سے ہٹ کر آ ہی گئے ہیں تو ان پیسوں سے ہرگز نہیں. صفدر نے قطعی انداز میں کہا، کوئی ایسی ویسی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری نہ ہو. اس کے لہجے میں ہفکی جھلکتی تھی. صرف روزمرہ کی اشیاء ہردونوش جیسے آٹا، چاول، چینی، گھی، تیل وغیرہ لے لینا، بس بس. زرینہ نے ایک ہاتھ کو اٹھاتے ہوئے مخصوص انداز میں کہا، میں سمجھ گئی تم کیا کہنا چاہ رہی ہو. تم فکر نہیں کرو، میں ان پیسوں سے 3 کیا 4 ماہ کا راشن اسٹاک کر لوں گی. تب تو ٹھیک ہے، صفدر نے عجیب سے لہجے سے کہا اور واش روم میں گھس گیا. زرینہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صفدر نے اس قسم کی باتیں کیوں کی ہیں. اس نے صفدر کے رویے میں عجیب سی تبدیلی محسوس کی. جس شخص کو انعام میں 1 ماہ کی تنخواہ کے برابر رقم ملی ہو وہ اس قدر بجھا ہوا نہیں ہونا چاہیے. صفدر محض افسردہ ہی نہیں بلکہ زندگی سے ہارا ہوا شخص نظر آ رہا تھا. صفدر حسین کی شادی کو لگ بھگ 10 سال ہو گئے تھے. اس کی 2 اولادیں تھیں، 8 سالہ حسنین اور 5 سالہ رافعہ. اس کی بیوی زرینہ ایک ناخواندہ گھریلو خاتون تھی. اس نے دونوں بچوں اور گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال رکھا تھا. صفدر کو زرینہ سے کوئی شکایت نہیں تھی. وہ لوگ منظور کالونی کے ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے. زرینہ کے بالعکس صفدر نے انٹر تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی. گئے وقتوں میں مڈل پاس کی بھی بڑی عزت اور اہمیت ہوا کرتی تھی، مگر آج کل ماسٹر کیے ہوئے لوگوں کو بھی کلرک کی نوکری مشکل سے ملتی ہے. صفدر تو محض FA پاس تھا. صفدر کا قد کاٹ اور صحت اچھی تھی. نوکری کی تلاش میں یہاں وہاں قسمت آزمانے کے بعد جب اسے ہاتھرہا کامیابی نہ حاصل ہوئی تو کسی خیر خواہ کے مشورے پر اس نے سیکیورٹی گارڈ بننے کا فیصلہ کر لیا. اب وہ پچھلے 12 سال سے اسی شعبے سے منسلک تھا. ابتدا میں اس کی تنخواہ بہت کم تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس وقت وہ ماہانہ 30,000 روپے تنخواہ اٹھا رہا تھا. اگرچہ یہ کوئی بہت اچھی آمدن نہیں تھی لیکن محدود خواہشات کے ساتھ ان کا اچھے سے گزارا ہوتا جا رہا تھا. پچھلے چند سالوں میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوتا چلا گیا ہے. کوئی مونٹیسری یا پرائمری اسکول ہو اور یا پھر کالج وغیرہ، اگر آپ اس کے باری اخراجات برداشت کرنے کی سکت رکھتے ہوں تو آپ کے بچے کو ایک سے ایک بڑھ کر اسکول اور کالج میں بآسانی داخلے کو مل جائے گا. یہاں تک کہ دولت کے طاقت کے بل بوتے پر
डॉक्टर और इंजीनियर बनना भी बहुत आसान हो गया था। इन दिनों सफदर हुसैन एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बतौर सिक्योरिटी गार्ड नौकरी कर रहा था। इसकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक की थी। मज़कूरा मेडिकल कॉलेज एक 3 मंजिला इमारत में खुला हुआ था। वहाँ पर डॉक्टरी की तालीम हासिल करने वालों में से कोई एक स्टूडेंट भी गरीब या मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ नहीं रखता था। वो सब लड़के और लड़कियाँ खाते पीते बासर घरानों से थे। इनके वालिदैन के पास दौलत की कमी ना थी और ना ही असर व रसूख की। आसूदगी, फारूल बाली और बेफिक्री इनके चेहरों पर चमकती थी। इस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नौकरी के दौरान में सफदर हुसैन ने एक बात खास तौर पर नोट की थी कि मुस्तकबिल के इन डॉक्टर और लेडी डॉक्टर्स को पढ़ने में कम और दोस्ती में ज़्यादा दिलचस्पी थी। इन आज़ाद ख्याल लड़के और लड़कियों के हंसी मजाक को देखकर बाज़ औक़ात सफदर को शर्म तक आ जाया करती, लेकिन इसने कभी किसी के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं की। वो अपने काम से काम रखने का आदी था, मगर एक रोज़ ना चाहते हुए भी वो खुद को बचा ना सका। कॉलेज की कैंटीन यानी कैफेटेरिया सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था। इस कैफेटेरिया के बाजू में एक स्टोर रूम था, जहाँ पर मुख्तलिफ नौइयत की इस्तेमाल में ना आने वाली चीज़ें पड़ी रहती थी। तमाम सिक्योरिटी गार्ड इसी स्टोर रूम में चेंज किया करते। इस वक्त दोपहर के 4:30 बजे थे। सफदर के अलावा दीगर सिक्योरिटी गार्ड अपना लिबास तब्दील करने जब कॉलेज से जा चुके थे। वो भी इसी घर से जब एक स्टोर रूम की जानिब जाने लगा तो दूसरी मंजिल के एक कमरे के सामने से गुजरते हुए वो ठिठक कर रुक गया। तवील राहदारी के दोनों जानब बने हुए कमरे दर हकीकत क्लासरूम से, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ बैठकर डॉक्टरी की तालीम हासिल करते। इन्हीं औकात में सफदर का रोज़ाना वहाँ से गुजर होता। इस कॉलेज के स्टूडेंट्स अमूमन 2 से 3 बजे तक छुट्टी करके अपने घरों को रवाना हो जाया करते। वो तमाम क्लासरूम्स अपने खुले हुए दरवाज़ों के साथ रोज़ाना सफदर की निगाह से गुजरते, लेकिन वकूआ हुआ कि रोज़ एक कमरे का दरवाज़ा बंद देखकर इसे अजीब सा लगा। एक लम्हे के लिए वो ठटका, फिर जैसे ही इसने आगे बढ़ने का इरादा किया, बंद दरवाजे के पीछे से उभरने वाली आवाज़ों ने इसके पाँव में जंजीर डाल दी। वो किसी लड़के और लड़की की मिली जुली आवाज़ें थी, जिन्हें गुफ्तगू तो बहरहाल नहीं कहा जा सकता था। एक लिहाज से वो मौजूद जज्बात और हेजान हेज एहसासात का इज़हारी इजहार था। सफदर की समात में साइंसाएँ होने लगी। अंदरूनी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो आगे बढ़ा और मेगानगी में धक्का देकर इसने दरवाज़ा खोल दिया। खुले हुए दरवाजे से दिखाई देने वाले मनाजर ने इसके होशो हवास को शर्म से पानी पानी कर दिया। वो लड़की और लड़का इसी कॉलेज के 2 स्टूडेंट थे। इन्हीं लम्हात में वो दोनों काबिल एतराज़ हालत के बुलंद तरीन दर्जे पर फायज होकर गैर हम नसाबी सरगर्मियों में मसरूफ थे। सफदर हुसैन तो जैसे पत्थर का बुत बनकर रह गया, लेकिन वो दोनों इंतहाई मुस्तैद और फाल थे। लिहाजा उन्होंने फ़ौरन से बेहतर खुद को समेट कर संभाल लिया। मौका महल की नज़ाकत बल्कि संगीनी के पेश नज़र लड़के ने अपनी पतलून की जेब में से 500 रुपये का एक नोट निकाल कर सफदर की जानिब बढ़ाते हुए निटाई अमेज़ लहजे में कहा, ये रख लो और भूल जाओ कि तुमने यहाँ कुछ देखा है। सफदर ने नोट की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया और अपनी गर्दन को कुछ इस अंदाज में हरकत दी जैसे कह रहा हो, समझ गया सर, आप बेफिक्र हो जाए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। फिर वो आगे बढ़ गया। अकब से इस मुस्तकबिल के डॉक्टर लड़के की धमकी अमेज़ आवाज़ इसकी समात तक रसाई हासिल करने में कामयाब होगी। मुंह बंद रखने में ही तुम्हारी भलाई है। अगर तुमने ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो गायब कर दिए जाओगे। इन्हीं लम्हात में सफदर का दिमाग किसी आतिश शाह की शक्ल इख्तियार कर चुका था। वहाँ से जारी होने वाले लावे ने इसकी सोच को झुलसा कर बल्कि पका कर रख दिया। इसने स्टोर रूम में पहुंचकर जल्दी से लिबास तब्दील किया और सोहता हयाली के साथ ही एडमिनिस्ट्रेटर के कमरे की जानिब रुख कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर अपनी सीट पर मौजूद था। सफदर ने इसे इस्लाम की और कुछ हिचकिचाहट आमेज लहजे में बोला, सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तनहा में इजाफे की दरखास्त के अलावा तुम बिला खौफ खतर कुछ भी कह सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर ने इसकी तरफ देखते हुए सरसरी अंदाज में कहा, सर मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ इसका तल्लुक मेरे तनहा से नहीं बल्कि आपके कॉलेज की साख से है। सफदर ने स्पॉट आवाज़ में कहा। एडमिनिस्ट्रेटर ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और गहरी संजीदगी से बोला, बैठ जाओ। सफदर एक कुर्सी खींचकर इसके सामने बैठ गया। अब बताओ मामला क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर ने ठहरे हुए लहजे में सवाल किया। सर मैं पिछले 4 साल से आपके कॉलेज में ड्यूटी कर रहा हूँ, सफदर ने मुतदिल अंदाज में कहा। आप मुझे इसी तरह जानते हैं, मैंने कभी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर इसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। तुम बहुत ही जिम्मेदार, मेहनती और वक्त के पाबंद सिक्योरिटी गार्ड हो। तुमने हमेशा कॉलेज की भलाई के लिए सोचा है। कॉलेज की इज्जत और भलाई की सोच ही इस वक्त मुझे आपके पास लेकर आई है सर, सफदर ने गहरी संजीदगी से कहा। अभी चंद मिनट पहले मैंने क्लासरूम में जो कुछ देखा है वो आपकी कॉलेज की साख की धज्जियां उड़ा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। इसने पुरतशवीश नज़र से सफदर को देखा और कदरे धीमे लहजे में कहा, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्या देखा है? आइंदा 5 मिनट में सफदर ने नहायत ही मुहस्सर मगर नपतुल अल्फाज में एडमिनिस्ट्रेटर को सूरत हाल से आगाह कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर ने पूरी तवज्जो से सफदर की बात सुनी, फिर एक बोझल सांस खारिज करते हुए इस्तफसार किया, क्या तुम इन दोनों स्टूडेंट को जानते हो? जी सर। सफदर ने इस बात में गर्दन हिलाने के बाद इस लड़के और लड़की का नाम लिया और कहा, सर वो दोनों 2nd ईयर के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर सफदर की आंखों में देखते हुए समझाने वाले अंदाज में बोला, मैं इस मसले को तो देख लूंगा। तुमने किसी और शख्स से इस वाक़े का जिक्र तो नहीं किया? नहीं सर, सफदर ने नफ़े में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं तो सीधा आपके पास आया हूँ। शाबाश, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। एडमिनिस्ट्रेटर ने तौसीफी नज़र से देखते हुए कहा, यह बहुत हसास मामला है, लेकिन मैं किसी न किसी तरह से सुलझा लूंगा। बस तुम अपनी ज़ुबान बंद रखना।
किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि आज कॉलेज के एक क्लास रूम में तुमने क्या देखा है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी सर, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए जल्दी से बोला। आपने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। गुड। एडमिनिस्ट्रेटर ने मुतमईन अंदाज में कहा, अब तुम जा सकते हो। सफदर ने कॉलेज से निकलकर अपने घर किराया ले ली। रात को जब दोनों बच्चे सो गए तो सफदर ने अपनी बीवी को सब कुछ सच सच बता दिया। जरीना ये किस्सा सुनकर हक्का बक्का रह गई। सफदर जब खामोश हुआ तो वो अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोली, तौबा है, आजकल के नौजवानों की शर्म हया तो बिल्कुल ही रुस्सत हो गई है। तुम जो बता रहे हो वो तो बेगैरती का जिंदा शाकार है। मेरे अबू बिल्कुल ही ठीक कहते हैं। जरीना अपने बाप का हवाला देकर कुछ ना कुछ कहती रही। सफदर पूछे बिना न रह सका, तुम्हारे अब्बू क्या फरमाते हैं इस मामले में? अब्बू महलूद तालीम के सख्त खिलाफ है। वो पुरजोश अंदाज में बोली, प्राइमरी और नर्सरी की हद तक तो ठीक है, लेकिन बालिग लड़के और लड़कियों को एक साथ मिलकर पढ़ाई तो क्या बल्कि कोई काम भी नहीं करना चाहिए। अब्बू का कहना है कि जब एक नामहरम लड़का और लड़की तन्हाई में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो इनके दरमियान शैतान भी मौजूद होता है जो इन्हें बआसानी बहका देता है। इसके बाद वही होता है जो आज तुमने कॉलेज में देखा। शैतान तो हर इंसान के साथ लगा हुआ था। सफदर ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, इंसान की इज्जत इसके अपने हाथ होती है। शैतान को इल्ज़ाम देना बहुत आसान है। अगर इंसान खुद अपनी इज्जत को नीलाम ना करना चाहे तो किसी की मजाल नहीं कि इसकी जानिब उंगली उठाए। मैंने मेडिकल के स्टूडेंट इस नौजवान की आंखों में ज़रा सी भी नदामत और पेशमानी नहीं देखी। वो अपनी बदफेली को एक दिलचस्प खेल समझ रहा था। भर क्या वो सांस संवार करने की गर्ज से मुतवक्किफ हुआ, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मैं तुम्हारे अब्बू के फलसफे से काफ़ी हद तक इत्तफाक करता हूँ, लेकिन हम इस वक्त जिस दौर में सांस ले रहे हैं वहाँ महलूद तालीम हमारी मजबूरी बनकर रहेगी। खसूसन प्रोफेशनल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में तो लड़के और लड़कियों को एक साथ ही तालीम हासिल करना पड़ती है। हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, जब ये दोनों कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुँचेंगे तो इतनी दूर की नहीं सोचो। सफदर, जरीना कता कलामी करते हुए बोली, फौरी तौर पर इस बात की ज़रूरत है कि तुम अपने दिल का बोझ और दिमाग का सोच एक तरफ रख कर गहरी नींद सो जाओ। ये तो तुमने बहुत ठीक बात की। वो ताइदी अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, मैं इस वक्त आराम की शदीद तलब महसूस कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कल कॉलेज का वो बड़ा प्रोफेसर तुम्हें ज़रूर कोई इनाम कराम देगा। जरीना ने जोर देकर कहा, तुमने इसके कॉलेज को बदनामी से बचा लिया है। मैंने किसी इनाम के लालच में वो सब नहीं किया। जरीना सफदर सपाट आवाज में बोला, मैं समझता हूँ वो मेरी ड्यूटी का हिस्सा था। सिक्योरिटी गार्ड का काम है कि अपनी जान पर खेल कर अपने मालिक को तहफ़्फ़ुज़ दे। मैं इस कॉलेज की हिफाजत पर मामूर हूँ। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। इस काम की मुझे तनख्वाह मिलती है। जरीना इश्क आमेज़ नज़रों से इसे तकने लगी। आइंदा रोज़ सफदर हस्बे मामूल ड्यूटी पर पहुंच गया। इसके जहन में कल वाला वाक़या ताज़ा था, ताहम इसने अपने चेहरे से ऐसा ज़ाहिर नहीं होने दिया कि गुज़श्ता रोज़ इसकी आंखों ने बेशर्मी का तूफान देखा था। वो एडमिनिस्ट्रेटर से किए हुए वादे को बखूबी निभा रहा था। ड्यूटी के दौरान इसे वो स्टूडेंट लड़का भी नजर आया जिसने कल इसे ज़बानबंदी की मद में 500 रुपये रिश्वत देने की नाकाम कोशिश की थी। इसे देखकर सफदर का खून खोल उठा, ताहम इसने अपने जज्बात काबू में रखते हुए इस लड़के को नज़रअंदाज कर दिया। इसके बावजूद वो इस लड़के की बोलती आंखों को बुलाने में कामयाब रहा। उसका जब इन दोनों की आंखें मिली तो सफदर ने इसकी आंखों में नापसंदीदगी, तफाहुर और तकब्बुर की मिली जुली कैफियत देखी। इसे अपने कल वाले कारनामे पर कोई शर्मिंदगी ना थी और ना ही कोई पेशमानी। सफदर अपने जहन में ऊद आने वाले ख्यालात को पस्ते पुष्ट डालकर अपनी ड्यूटी की सार अंजामदही की कोशिश कर रहा था और इस सही में इसे हाथ रहा कामयाबी हासिल भी हुई थी। पुलिस से फारिग हुआ तो एक चपरासी ने इसके पास आकर कहा, सफदर ड्यूटी ऑफ करने के बाद तुम एडमिनिस्ट्रेटर साहब से मिल लेना। वो किस लिए बेसादा इसके मुंह से निकला ये तो मुझे मालूम नहीं पाई। चपरासी ने बेजारी से कहा, साहब ने जो हुक्म दिया है वो तुम तक पहुंचा दिया है, इसके बाद मेरा काम खत्म। चपरासी के मुंह से एडमिनिस्ट्रेटर के बुलावे का सुनकर इसके जहन में पहला ख्याल यही आया था कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी और एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने इसे किसी तादीब और डपट के लिए अपने पास बुलाया, लेकिन इस चपरासी के चेहरे और आंखों से ऐसा कुछ जाहिर नहीं हो रहा था। ठीक है, सफदर ने मुतमईन अंदाज में कहा, थोड़ी देर में मेरी ड्यूटी ऑफ हो जाएगी, मैं घर जाने से पहले एडमिनिस्ट्रेटर साहब से मिल लूंगा। चपरासी चला गया तो सफदर जरीना के कहे हुए अल्फाज के बारे में सोचने लगा। गुज़िश्ता रात जरीना ने कई बार बड़े वसूख से ये बावर कराने की कोशिश की थी कि इसने कॉलेज के वकार के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर जो कदम उठाया इस पर इसे ज़रूर कोई इनाम मिलेगा। तो क्या इसके जहन में एक तवाना ख्याल उभरा, एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कोई इनाम वगैरह देने के लिए मुझे अपने पास बुलाया है। सफदर ने अपनी ड्यूटी पूरी की और लिबास तब्दील करने के बाद वो एडमिनिस्ट्रेटर के कमरे की जानिब चल दिया। इन लम्हात में इसकी हालत अजीब हो रही थी। इसके जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे थे और इन्हीं की उधेड़पन में मसरूफ़ वो एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस तक पहुंच गया। एडमिनिस्ट्रेटर हद से ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रहा था। इसने सफदर को बैठने के लिए नहीं कहा और एक लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाते हुए सपाट आवाज़ में बोला, ये तुम्हारे लिए है। इसमें क्या है सर? सफदर ने हिचकिचाहट आमेज़ लहजे में इस्तफसार किया। खुद खोल कर देख लो, वो रुखाई से बोला। चंद लम्हात के तजब्जुब के बाद सफदर ने इसके हाथ से वो लिफाफा ले लिया। फिर जब इसने लिफाफे को खोलकर देखा तो उसके अंदर बिल्कुल नए करेंसी नोट बड़े हुए थे। सफदर ने इस रकम को गिना तो पता चला वो 30,000 रुपये है। बहुत शुक्रिया सर, सफदर ने जज्बात से मगलूब आवाज़ में कहा। मैंने कल जिस फर्ज शनासी का सबूत दिया है इसके लिए आपने मुझे एक गिरां कदर इनाम दिया है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। ये तुम्हारे इनाम की रकम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर ने जज्बात से आरी लहजे में कहा। सफदर के ज़हन को एक झटके का सामना करना पड़ा तो फिर इसने बिखरी हुई आवाज़ में कहा,
یہ تمہاری 1 ماہ کی سیلری ہے، ایڈمنسٹریٹر نے جواب دیا۔ لیکن سر، صفدر نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، میں 4 روز پہلے ہی تو سیلری لے چکا ہوں، وہ پچھلے ماہ کی سیلری تھی۔ ایڈمنسٹریٹر اس کے چہرے پر نگاہ ڈال کر بولا، یہ 30,000 روپے 1 ماہ کی ایڈوانس سیلری کی مد ہے، کیونکہ آج اور اسی وقت سے تمہیں کالج کی نوکری سے فارغ کیا جا رہا ہے۔ کیا؟ الفاظ صفدر کے حلق میں جیسے اٹک کر رہ گئے۔ ایسا کیوں سر؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ تم نے غیر متعلقہ معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے، ایڈمنسٹریٹر نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ تم نے کل سیکنڈ ایئر کے جس اسٹوڈنٹ کی مجھ سے شکایت کی تھی، اسی کے کہنے پر تمہیں نوکری سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ تو سراسر زیادتی اور ناانصافی ہے سر، صفدر نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ اصولاً تو ان دونوں اسٹوڈنٹس کو کالج سے نکال دینا چاہیے، جو تعلیم حاصل کرنے کی آڑ میں آپ کے کالج کے ماحول کو ہرا بھر کے آلودہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ میڈیکل کالج تمہارے باپ کی ملکیت ہے؟ ایڈمنسٹریٹر نے اکڑے ہوئے لہجے میں صفدر سے سوال کیا۔ نہیں سر، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں تو بہت غریب آدمی ہوں جناب۔ تو پھر تمہارے دقیانوسی اصولوں کا اس کالج پر اطلاق نہیں ہوتا، ایڈمنسٹریٹر نے واشگاف الفاظ میں کہا۔ اس کالج کا ہر اسٹوڈنٹ سالانہ 30 لاکھ روپے فیس کی مد میں دیتا ہے، اخراجات اس کے علاوہ ہیں۔ اگر ہم ان 2 اسٹوڈنٹس کو کالج سے نکال لیں تو اس کالج کو 60 لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے گا۔ پھر اس لڑکے کا باپ بہت ہی طاقتور اور دور کی پہنچ رکھنے والا، وہ جواباً ہمارے کالج کو کسی بھی قانونی جھمیلے میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے بند کروا سکتا ہے۔ بات آگے سمجھ؟ نہیں سر، صفدر نے ایڈمنسٹریٹر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، میری سمجھ میں تو صرف یہ آ رہا ہے کہ کل وہ دونوں اسٹوڈنٹس کلاس روم میں بالکل غلط کر رہے تھے اور انہیں اس سنگین جرم کی سزا ضرور ملنا چاہیے۔ تم نے کل جو دیکھا، کیا اس میں لڑکا لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا؟ ایڈمنسٹریٹر نے عجیب سے لہجے میں ایک چبھتا ہوا سوال کیا۔ بے ساتھ صفدر نے نفی میں گردن ہلا دی، گویا اس عمل میں لڑکی کی مرضی شامل تھی۔ ایڈمنسٹریٹر نے تیکھے انداز میں استفسار کیا۔ لگ تو ایسے ہی رہا تھا، صفدر نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، لیکن سر یہ قانوناً، اخلاقاً اور شرعاً تو غیر قانونی ہے نا۔ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے تمام لڑکے اور لڑکیاں عاقل و بالغ ہیں، وہ اپنا اچھا برا خوب سمجھتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر نے اس حساس اور اہم گفتگو کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا، یہ کالج تعلیمی ادارہ ہونے کے ساتھ ایک منافع بخش کاروبار بھی ہے، لہٰذا ہم اسٹوڈنٹس کے اخلاقیات کو سنوارنے کی بجائے ان کی تعلیمات اور اپنے فائدے پر نظر رکھتے ہیں، ہمیں ان کے نجی معاملات اور باہمی تعلقات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ قبل اس کے ایڈمنسٹریٹر اس سے کہتا، بات آئی سمجھ؟ صفدر گردن جھکا کر اس کے کمرے سے نکل گیا، کیونکہ اب کہنے سننے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ کاروبار کا زرعی اصول صفدر کی سمجھ میں ٹھیک طرح سے بیٹھ گیا تھا۔